Hello students, I hope that you all are doing very well. In this video, we will discuss about ribosomes, centrosomes, centrioles and the introduction of cell division. I hope that you have already viewed the previous parts of the cell. I had already given the link of the previous parts of the cell in the description box. You can go through it. Now, we will start from ribosomes. As we all know, ribosome is a type of cell organelle and basically ribosomes are the protein factory of the cell. Ribosomes क्या है? Ribosomes are the protein factory of the cell. ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है. क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेल में है, all the proteins are manufactured by ribosomes. Who discovered ribosomes? So, ribosomes was discovered by George Palade in 1953. That means George Palade was a biologist who discovered ribosomes in 1953. What is the composition of ribosomes? Ribosomes are made up of RNA. The full form of RNA is ribose nucleic acid and protein. As we all know, in prokaryotic as well as in eukaryotic cell, in both the cells ribosomes are present. Therefore, we can say that ribosomes are the most abundant cell organelle because it is present in every cell. Either it is prokaryotic cell, either it is eukaryotic cell. Ribosomes are membrane-less cell organelle. That's why they are present in both the types of cell. So, what is the further division of ribosomes? So, ribosomes are classified basically into two types. First is called 70S ribosomes and second is called 80S ribosome. What do you mean by this 70S and 80S? 70S ribosomes are present in prokaryotic cell while 80S ribosomes are present in eukaryotic cell. 70S is somewhat less developed ribosomes while 80S is somewhat more developed ribosomes. And this, what is the meaning of this S? This S stands for Svedberg's unit or sedimentation coefficient. Therefore, we can say that ribosomes are basically of two types. First is your 70S ribosome and second is your 80S ribosome. 70S ribosomes, the S stands for Svedberg's unit or sedimentation coefficient, while in 80S ribosomes, they are basically found in eukaryotic organism. So, only 3-4 points are important for ribosomes. First is ribosomes are the protein factory of the cells. Ribosomes are basically of two types, 70S and 80S. Every cell consists of ribosomes. Either the cell was prokaryotic or eukaryotic. Therefore, ribosomes are the very important cell organelle. Now, we will move towards the next cell organelle, that is centrosomes. What are centrosomes? So, centrosomes are the basically cell organelle which helps in the cell division. Centrosomes ऐसे cell organelle हैं जो किस में help करते हैं? Cell division में help करते हैं. और centrosomes plant और animal क्या दोनों cell में पाए जाते हैं? तो basically centrosomes are found in animal cells and centrosomes helps in the cell division. इसी centrosome के अंदर दो cylindrical shape के structure होते हैं. इन दोनों सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं. तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कोई अलग अलग चीजें नहीं है ना. जो सेंट्रोसोम्स हैं वो सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? सेंट्रोसोम के अंदर सिलेंड्रिकल शेप के एक पेयर सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना. तो याद रखना है, व्हाट इज सेंट्रोसोम्स? सेंट्रोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल व्हिच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन दैट मींस एक सेल से दूसरी सेल का बनना, एक से दो सेल, दो से चार सेल, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल, है ना. तो डिवीजन ऑफ सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है. तो सेंट्रोसोम्स क्या है? सेंट्रोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल व्हिच हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल एंड सेंट्रोसोम कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलिंड्रिकल शेप पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. इसको याद रखना है. उसके बाद हम आगे चलते हैं. एक फर्दर लास्ट एनसीईआरटी में एक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एडेड है. उस इंट्रोडक्शन ऑफ सेल डिवीजन में हमें दो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है. एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस, है ना. अब ये दोनों क्या चीज है? सेल डिवीजन क्या होता है, इसको देखते हैं ध्यान से. तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेल डिवीजन?
सेल डिवीजन मीन्स द एबिलिटी ऑफ सेल टू फॉर्म न्यू सेल्स, है ना। जैसे एक सेल है ना, ये एक सेल डिवाइड होगी, कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बन जाएगी। फिर वापस से दोनों सेल डिवाइड होगी, कितनी सेल बनेगी, 4 सेल बन जाएगी। तो मतलब पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना ही क्या है, सेल डिवीजन है ना। अब सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल दैट मीन्स इक्वल, है ना। अगर एक सेल से 2 सेल बन रही है, मतलब इस सेल के जितने भी मटेरियल्स थे वो इक्वली क्या हो गए, दोनों सेल में बट गए, है ना। तो जब एक सेल का इक्वल डिवीजन हो, है ना, कितने सेल्स में, 2 सेल्स में, तो सच डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर्स आर सेम दैट ऑफ पेरेंट सेल। एक इसमें एक बात याद रखनी है, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम। तो अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इसकी जो डॉटर सेल्स आएगी ना, उसमें भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम होंगे, है ना। तो ये डिवीजन कैसा हुआ, दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन दैट इज इक्वल डिवीजन। तो इक्वल डिवीजन ऑफ सेल को क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। और इक्वल डिवीजन ऑफ सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमेशा इक्वल होते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम से। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और हम जानते हैं रेड्यूस करना मतलब क्या होता है, कम करना। रिडक्शनल दैट इज रेड्यूस करना, और रेड्यूस दैट इज कम करना। तो कम किसको करना, तो कम क्रोमोसोम के नंबर को करना, जैसा कि स्पर्म और ओवम के केस में होता है ना। स्पर्म और ओवम के केस में क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं एक पेरेंटल सेल में, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और 23 क्रोमोसोम ईच सेल में होते हैं। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 थे पेरेंट्स में, लेकिन जब स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन हुआ, मतलब जब गैमेट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो क्रोमोसोम नंबर इक्वल ना होकर रेड्यूस हो गए। तो ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस हो जाए, इस तरीके के रिडक्शनल डिवीजन को क्या कहते हैं, इस तरीके की रिडक्शनल डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं, है ना। तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिड्यूस्ड। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। अब यहां पर तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, तो ये एक क्रोमोसोम है ना। इस क्रोमोसोम में क्या है, ये 2 जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। ये आर्म ऑफ क्रोमोसोम है, और ये जो बीच का सेंटर वाला रीजन है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो मैंने तुमको एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए इसको क्या किया है, ड्रॉ किया है ना, कि सेंट्रोमियर्स क्या है, सेंट्रोमियर्स जो है वो सेंट्रल रीजन है क्रोमोसोम के, है ना। और यही क्रोमोसोम का एक फिगर है ना। इस क्रोमोसोम के फिगर में हमें क्या पता चल रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स है, सेंट्रोमियर है, और ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो इन दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what is the function of ribosome, what is centrosome, what is centrioles, and in the last of this video I will ask you one question. What is that? That question is, what is the number of chromosomes in butterfly? As we see, there are so many butterfly, colorful butterfly nowadays after raining. What is the number of chromosomes in the butterfly? The number of chromosomes in human beings is 46. Then you have to comment this answer in the comment box. What is the number of chromosome in your butterfly? From the next video, we will start the new chapter, that is the tissue. Before that, you have to complete your work properly and thoroughly.